Good afternoon, sir. Yes, good morning, Shri. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Vanshika. So today we will focus on this database concepts, exercise chapter number 7 from the NCERT book. ठीक है, वंशिका थोड़ा सा बता दो जो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट दैट marks distribution in the pre-board exam. Sir, about marks distribution, that there are 21 questions of one marks, in which we have to attempt 15 questions. 20 second question and 23 third question will be case based questions, in which there will be choices. ये भी 22nd and 23rd they are also 1 marks के अंदर ही हैं, ठीक है? Yes, sir. 2 marks question will be of 10 questions. There will be of 2 marks without any choice. Internal choice will be given. Marks there will be 4 questions without choice, and in this also internal choices will be given, and 3 question of 5 marks without choice. Internal choice will be given. Yes, yes. ठीक है, तो एक है हमारे पास 1 marks question, ठीक है, फिर है 2 marks. 2 marks are basically the very short answer questions, and then we have 3 marks, they are short answer, and last is the long answer 5 marks questions. ठीक है, almost we have basically seen all these questions in the online test also, clear, but उसके अंदर वो case based question और 15 वाली choice नहीं थी, 21 out of 15 you have to attempt. So let us start from the today's topic. ठीक है, so first question, yes, वंशिका आप ही start करो. Give the terms for each of the following. Collection of logically related records, sir, RDBMS, relational database management. Database is a collection of logically related records. Yes. ठीक है जी, so yes, Shriya पढ़ो next question second. DBMS creates a file that contains description about the data stored in the database. कौन सी फाइल क्रिएट करता है ये? मेटा डाटा का नाम सुना है? I don't know. हाँ, मेटा डाटा, metadata. हाँ, मेटा डाटा होता है, that is data about the data ना. जैसे हमने कोई भी टेबल क्रिएट किया है, स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है, अब स्टूडेंट टेबल के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है उसकी डिस्क्रिप्शन जो हम नोट कर रहे हैं, सो अबाउट दैट इज बेसिकली इज व्हाट वी हैव इन मेटा डाटा, दैट इज द डाटा अबाउट दैट डाटा. ठीक है, जो भी हमने की टर्म्स यूज की हैं उसकी एक्सप्लेनेशन जो है हम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. सो यस, नेक्स्ट इज मनत शर्मा. Yes, sir. Yes, yes. C part. Attribute that can uniquely identify the tuples in a relation. Sir, इसका नहीं पता. Yes, anyone who wants to make a try. Attribute that can uniquely identify the tuples in a relation. So primary key. Primary key is the attribute that uniquely identify the tuples in a relation. ठीक है जी. Next is the D part. Yes, Vanshika. D.
special value that is wait. Yes. special value that is stored when actual data of value is unknown for an attribute null. Null value, ठीक है. So null value is basically used to where we make use of null value when we have unknown value. जब हमें पता नहीं है अपनी साइड से कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, so then we make use of the null value. So yes, good attempt by Vanshika. Next is so there are so many persons are there. Yes, Harshita. Next question. E part. An attribute which can uniquely identify tuples of the table but is not defined as primary key of the table. Unique constraint. ठीक है, an attribute which can uniquely identify the tuples of the table but is not defined as the primary key of the table. देखो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, वी हैव इन अ टेबल वी कैन हैव नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज, तो उन कैंडिडेट की में से वन ऑफ द की सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी की. क्लियर. तो प्राइमरी की के अलावा भी देयर आर सर्टेन कीज आर देयर व्हिच आर एक्टिंग एज नो द ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ए प्राइमरी. क्लियर. सो द कैंडिडेट की an attribute which can uniquely identify the tuples of the table but is not defined as the primary key of the table. ठीक है, तो that can be a candidate key. ठीक है. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, maybe its answer will be alternate key because candidate key except the primary key is known as alternate key. हाँ, alternate key क्या है basically, alternate key is again formulated from that. Alternate key का मतलब क्या है कि with that at certain place it can work as a key. ठीक है, that is we have the alternate key. तो basic जो हमारे पास definition है वो candidate key की है, that is basically uniquely identifies the tuples in the table. अब होता क्या है उसमें से, अगर हमारे टेबल के अंदर दो कैंडिडेट की हैं तो वन ऑफ द की इज सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी की. क्लियर. एंड रेस्ट की आप उसको अल्टरनेट की भी बोल सकते हो. क्लियर. जो प्राइमरी की के अलावा जो की बच गई दैट बिकम्स ए अल्टरनेट की. सो वी आर पॉइंटिंग टू द वन एंड द सेम की. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एफ पार्ट. यस, दिलबाग सिंह. और कैमरा ऑन कर लो भाई. दिलबाग सिंह, तरुणजोत, अभिनंदन, राजवीर एंड अजय प्रताप सिंह. नवदीप सिंह आल्सो. नवदीप सिंह, मन्नत शर्मा. सर यहाँ पे तो नेटवर्क इशू है तो कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही है वीडियो. सो यस, हु विल गो थ्रू दिस? यस हर्षिता, आप पढ़ो. Software that is used to create and manipulate and maintain a relational database. Question क्या है basically? Explain the question. Don't go for the answer. First explain the question. So that a software with the help with and we can manipulate them. Software that is used to create a relational database, used to manipulate and maintain a relational database. वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? The database relational database management system, RDBMS. RDBMS. Yes, Shriya wants to say something on this. Okay, sir. Sir, structured query language, SQL. Structured query language basically, no, it is asking about the software. Which software is basically used to create, manipulate and maintain a relational database? So relational database management system is the software that is used to create a relational database. Clear? Okay, sir. So now we move to the second question, that is there are so many persons are there here. We have participate वही कर रहे हैं. Yes, Jasmine को gift कर देते हैं. Jasmine,
You joined now and you go to this and read this second question. Why foreign keys are allowed to have null values? Explain with an example. Basically question क्या है हमारे पास, why foreign key values are allowed to have null values and explain with an example. ये question इतना easy नहीं है, that's not very easy to answer. First of all, we need to basically work on the concept की foreign key क्या है हमारे पास. What is a foreign key we have? क्या काम है foreign key का? Yes, anyone who knows about the foreign key? Yes, Shriya. So foreign key is a key or a constraint that points out to the other table's primary key. Yes. तो फिर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो सकता है, ये this is allowed. Why foreign keys are allowed to have null values? बेसिकली क्या है, जैसे तो जिस वे से आपने जो आपने डेफिनेशन बताई है, सो एज फॉरेन की पॉइंट्स टू द अदर टेबल्स प्राइमरी की, और प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यूज दे आर नॉट अलाउड. क्लियर? बट व्हाट हैपेंस इन सर्टेन केसेस हमारे पास क्या होती है, वी हैव ए कनकैटिनेटेड प्राइमरी की. ये कनकैटिनेटेड प्राइमरी की क्या होती है, दैट इज जब हमने प्राइमरी की को फॉर्मुलेट किया है बाय मेकिंग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके हमने एक प्राइमरी की को फॉर्मुलेट किया है. सो उसमें क्या हो सकता है कि जैसे एक प्राइमरी की को लेट से हमने दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक प्राइमरी की क्रिएट की हुई है, ठीक है. तो एक एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू है, दूसरे एट्रीब्यूट के अंदर नल वैल्यू डली हुई है, ठीक है. सो सिमिलर इन सर्टेन केसेस in the parts of the foreign key null values can be there. ये concept के लिए आपको clear होना चाहिए, but we don't encounter these sort of scenarios very often. ठीक है. तो जो हम पहली definition के साथ stick to है वो हमें clear होना चाहिए, that is the first point. और दूसरा point ये है कि ये theoretically हमें answer करने के लिए इसका आंसर पता होना चाहिए. Yes, this is allowed to have null values in foreign key, but in certain conditions, not oftenly. ऐसा होता नहीं है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, बट इन सर्टेन कंडीशंस. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि वो कौन सी कंडीशन है. मैंने आपको बताया जहां पे हमारे पास कनकैटिनेटेड प्राइमरी की होती है. क्वेश्चन अराइजेस, ये कनकैटिनेटेड प्राइमरी की क्या होती है, मोस्टली हम प्राइमरी की बना रहे होते हैं जो सिंगल एट्रीब्यूट वाली होती है, बट इन सर्टेन सिनेरियोज हमें प्राइमरी की बनानी पड़ती है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके. तो हमने उस तरह के सिनेरियो को अभी बहुत ज्यादा फेस नहीं किया हुआ है, तो ये हमें थ्योरेटिकली ये आंसर पता होना चाहिए. Yes, null values are allowed, but only in a certain cases in foreign keys. Clear? और जहां पे मैंने आपको एग्जांपल दी है, जैसे श्रिया ने जो डेफिनेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग तो नल वैल्यू अलाउड ही नहीं है प्राइमरी की में. तो अगर प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं है तो सिमिलरली फॉरेन की में भी नल वैल्यू अलाउड नहीं है, ठीक है. बट जब हमारे पास प्राइमरी की कनकैटिनेटेड होगी तो फॉरेन की भी ऐसे ही बनी होगी कनकैटिनेटेड. तो उस केसेस में इन ए पार्ट ऑफ ए दैट primary key null values are allowed, and similarly in foreign keys also the null values are allowed. तो ये theoretical concept है. So बस इसका आंसर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर होना चाहिए. That's all. So now we move to the third question where we have to basically work upon the differences. So Manat Sharma, are you there? Yes, sir. So Manat, yes, third का A part. डाटाबेस स्टेट एंड डाटाबेस स्कीमा. डाटाबेस होता है जिसमें हम सब कुछ हमारा डाटा होता है, फाइल्स होती हैं, और डाटाबेस स्कीमा में बस वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है डाटाबेस का. Yes. तो database schema you have rightly said about the that is the basically deals with the structure of the database. और database state जो है that is basically state means instance. Clear? At a particular point of time हमारे database का status क्या है, ठीक है. At 11 o'clock, at 12 o'clock, what is the present status of our database, ठीक है. क्योंकि हम क्या करते रहते हैं, हम continuously अपने database में रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं. तो state means at a particular point of time what is the status of our databases. So next question is about primary key and foreign key, difference between these two. So yes, Ajay Pratap.
Sir, primary key is the key that uniquely identify a row. To identify a row uniquely. Yes, yes. And foreign key is the primary key of another table. Oh नहीं, foreign key points to the other tables primary key. ये खुद primary key नहीं होती foreign key, फिर तो same ही हो गया. नहीं सर, दूसरे टेबल की. हाँ. और पर्पस क्या होता है हमारे पास फॉरेन की का? पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉरेन की? सर ये नहीं पता. बेसिकली जो पर्पस है हमारे पास, दैट इज जब हम दो टेबल्स को आपस में वी वांट टू जॉइन टू टेबल्स, तो उस पर्पस के लिए हम जो है फॉरेन की कंसेप्ट को यूज करते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू दिलबाग. द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन. in a table. जी Sir, these are the basically the number of rows and the number of columns in a table. हाँ, रोज किसको बोलते हैं? रोज के लिए कौन सी टर्म है? कॉलम्स के लिए कौन सी टर्म है? रोज के लिए डिग्री. रोज के लिए कार्डिनैलिटी है, और कॉलम्स के लिए और एट्रीब्यूट्स के लिए डिग्री है हमारे पास. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस हर्षिता. एंड लेट्स से यस हर्षिता, करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई? Yes, sir. Question 4. Compared to a file system, how does a database management system avoid redundancy in data through a database? Sir, data redundancy means पहले ये बताओ, ये फाइल सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज अ फाइल सिस्टम बेसिकली? Sir, in file system, data was stored in the form of flat files. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्या होता है, जैसे अगर हम पुराने बैंक की बात करें तो बैंक के अंदर क्या होता था, वो मल्टीपल रजिस्टर, मोटे रजिस्टर लगाए हुए थे उन्होंने काम करने के लिए. सो फाइल सिस्टम यू कैन कंपेयर विद अ सॉर्ट ऑफ ए मैनुअल सिस्टम के जैसे काम करता था पहले. क्लियर? सो फाइल सिस्टम वी कैन कंपेयर. वैसे फाइल सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम ही है, ऐसी हम बात नहीं कर रहे. फाइल सिस्टम इज ए बेसिकली मैनुअल सिस्टम. तो हम उसको एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे वो रजिस्टर मोटे लगाए होते थे, तो एक रजिस्टर एक तरह के डाटा को स्टोर करता था उसके अंदर. एंड यस, नाउ यू कैन आंसर. यस, हाउ द DBMS reduces the and avoids the redundancy? So data redundancy means the data duplicacy. हाँ. That the same data was stored at two different places. हाँ. In DBMS, we can avoid that because we can set some constraints that can check if the values are unique or not. ठीक है. एक तो ये है कि हम फाइल सिस्टम में क्या था कि एक आइटम को हम मल्टीपल जगह पे स्टोर कर रहे हैं. सो और DBMS में क्या है, हमारे पास सेंट्रलाइज लोकेशन में पड़ा हुआ है सारा डाटा. तो वहां पे क्या होता था, फाइल सिस्टम में हमें मल्टीपल जगह से चीज को अपडेट करना पड़ता था. अगर हमने एक जगह से हमसे छूट गया तो एक जगह डाटा कुछ और होगा, दूसरी जगह डाटा कुछ और होगा. ठीक है. जैसे वी टेक द एग्जांपल ऑफ, जैसे स्टूडेंट का एड्रेस है, ठीक है, तो जैसे लेट्स से क्लास इंचार्ज ने उसका डाटा चेंज कर दिया, बट एडमिन ऑफिस ने उसका पुराना ही है एड्रेस उसके पास. क्लियर? तो क्लास इंचार्ज के पास अपडेटेड एड्रेस है और एडमिन ऑफिस के पास अपडेटेड नहीं है. या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडमिन के पास अपडेटेड है, क्लास इंचार्ज के पास अपडेटेड डाटा नहीं. बट इन दिस बेसिकली DBMS system we have the checks and balances where the data is stored at a central location, and with that we can reduce the redundancy in the data. Yes. So next is the fifth question. So let's say we give it to yes Abhinandan. Are you there?
Yes, Vanshika. Yes, sir. What are the limitation of file system that can over by a relational DBMS? Sir, first is the data redundancy, data inconsistency, Yes. security issue, which were there in the file system. The next is data isolation, that they cannot be mapped or linked. Yes, These yes. are the Clear. So these are the few of the disadvantages that are existing, were earlier existing in file system. They are basically overcome in a DBMS system. So next we have a applied sort of a question is clear. So question number 6 is, I am reading this. So a school has a rule that each student must participate in a sports activity. So each one should give only one preference for sports activity. So each student can participate in only one of the games. Suppose that there are 5 students in a class, each having a unique roll number. So the class representative has preferred a list of sports preferences as shown below. So answer the following. So on the left hand side we have roll numbers, and on the right hand side we have preferences. So first question is, part A is yes Shri, आप करो इसको start. Part A. Part A is roll number 24 may not be interested in sports. Can a null value be assigned to that student's preference field? Sir, it can't be assigned because they have already told that each one should have only one preference and every student must participate. So null value can't be assigned to 24th roll number's preference. Yes, yes, yes. Good. Yes, next is B part. Yes, Harshita, आप करो discuss. Part B. Roll number 17 has given two preferences. Sport. Which property of relational DBMS is violated here? Can we use any constraint or key in the relational DBMS to check against such violation, if any? Yes, sir, it is written that roll numbers should be unique. So roll number 17 cannot be written twice. And it is also said that there can be only one sports preference. Yes, yes. So basically with the help of primary key we can ensure that there is only a single entry for a roll number. Yes, sir. So next is part C. So yes, Manat Sharma, are you there? Yes sir. Yes, C part. सर पहले क्वेश्चन पढ़ दूं. C part पढ़ो बेटा, C part. Kabaddi was not chosen by any student. Is it possible to have this tuple in the sports preference relation? It is, I think, not possible because उन्होंने कहा कि it is given that every sport मतलब choose होनी चाहिए, and so not sure about, but I think it is not possible. Kabaddi was chosen by what's not chosen by any student. Is it possible to have this tuple in the sports preferences relation? So how many row numbers basically we have? Basically so there can be, I think the scenario can be there that that a particular sports is not chosen by a student. How many we have? Basically 1 2 3 4 5 five roll numbers are there, and we have more entries on this side. 1 2 3 4 5 6. Yes, Vanshika, what is your view on this? सर मेरे आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो कबड्डी है उसके लिए फिर एक रोल नंबर चाहिए, और रोल नंबर प्राइमरी की है तो वो ना ही रिपीट हो सकता है और ना ही उसको नल रख सकते हैं, तो आई थिंक उसके लिए एक्स्ट्रा टप्पल जो है वो एक टेबल में नहीं आ सकता. So kabaddi cannot be chosen by any student. Is it possible? So we have this sort of scenario with us, and
ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द कंडीशंस एंड चेक आउट। मेरे हिसाब से तो ये यूनिक वैल्यू है एंड दैट कैन बी लाइक, अगर हमने हर किसी को मैच करना है, सो इन दैट केस इट कैन नॉट बी देयर। ठीक है, यही है आपका आंसर। Yes, sir. So yes, we have one more, this sort of question is there. So question number 7 is, in another class having 2 sections, so 2 respective class representatives have preferred 2 separate sports preferences, so as shown below. So sports preferences of section 1 are arranged on roll number column. Clear? So first we have roll number column and then we have their sports preferences. Then we have sport preferences of section 2 arranged on sports name column, and column order is also different. So we will see this is the other part, sports preferences and the roll number. So are the states of both relations are equivalent? Justify. एक हमने डिस्कस किया था, that is there is one point that no order doesn't matter in relational database. ठीक है, चाहे मोस्टली हम क्लास में क्या होता है, क्लास में हम काम शुरू करते हैं रोल नंबर वाइज शुरू कर देते हैं, बट ठीक है रोल नंबर 1 पहले आएगा फिर रोल नंबर 2 आएगा, बट दैट इज नॉट द केस इन केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. वी हैव डिस्कस्ड इट नंबर ऑफ टाइम्स दैट order of rows doesn't matter and also the order of columns doesn't matter in the relational database. Clear? So is it clear? Are the both states are equivalent? So both these states are equivalent in your relational database. Yes, Priya wants to say something on this. So no, I told that it is clear. Okay. So we have one more big question is there. So let us say, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कैमरा ही बंद करके बैठे हुए हैं. मनत शर्मा ने भी काफी आंसर कर दिया. यस, अजय प्रताप, आर यू देयर? Yes, sir. So let's start with the next question. Question number 8. The school canteen wants to maintain a record of items available in the school canteen and generate bill when students purchase any item from the canteen. The school wants to create a canteen database to keep track of items in the canteen and the items purchased by student. Design a database by answering the following questions. पहला क्वेश्चन पढ़ो पहले. Number A. To store each item name along with its price, what relation should be used? Decide appropriate attribute name along with their data type. Each item and its price should be stored only once. What restriction should be used while defining the relation? तो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स बताने हैं हमने, एट्रीब्यूट्स का नाम बताना है, एट्रीब्यूट्स की डाटा टाइप बतानी है हमने. So which of the attributes we will keep in this particular relation? ठीक है, पहला तो हो गया हमारे पास आइटम के रिगार्डिंग. वी विल फोकस इन द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द आइटम. तो एक तो हो जाएगा हमारे पास आइटम आईडी रख लेते हैं हम, आईडी ऑफ द आइटम दैट विल एक्ट एज ए प्राइमरी की. देन वी हैव आइटम नेम को भी हम रख सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव डुप्लीकेट आइटम्स. और एक उसका प्राइस है एंड वी हैव टू टेल देयर कॉरस्पॉन्डिंग डाटा टाइप आल्सो. यस वंशिका बताओ कौन कौन सा होगा इसके अंदर एट्रीब्यूट्स इन दिस पर्टिकुलर टेबल. Sir, attributes can be serial number, item and item prices. Or item name can be kept as a primary key. Item prices not null रख सकते हैं. आइटम प्राइस के ऊपर हम प्राइस को नॉट नल रख सकते हैं, दैट्स फाइन.
फिर सीरियल नंबर किस लिए रखना है? सीरियल नंबर की कोई मेरे को लगता है कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं। यस सर, इट्स ऑप्शनल। हाँ, इट्स ऑप्शनल, ठीक है। सो नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट, बी पार्ट। क्लियर? सो आई थिंक ओनली टू थिंग्स आर देयर, ठीक है। हम आइटम आईडी को भी लेके आ सकते हैं, वी कैन ब्रिंग ए आइटम आईडी एज ए प्राइमरी की, दैट्स नॉट ए इशू। So B part is, in order to generate the bill, we should know the quantity of the item purchased, ठीक है। तो ये एक important चीज है, when the bill is to be generated, we need to know कि जैसे किसी ने 2 items buy की हैं, 3 items buy की हैं, that is a good concern. So this information should be in a new relation or a part of the previous relation. तो ये हमने डिसाइड करना है कि ये प्रीवियस में होना चाहिए या एक नए रिलेशन के अंदर होना चाहिए, this particular attribute. If a new relation is required, decide the appropriate name. उस रिलेशन का, उस टेबल का हमने नाम बताना है, उसकी डाटा टाइप ऑफ फॉर द एट्रीब्यूट्स बतानी है, एंड आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट प्राइमरी की एंड फॉरेन की, सो दैट द फॉलोइंग 2 restrictions are satisfied. कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन है? Number 1 is the same bill cannot be generated for different orders, and bill can be generated only for available items in the canteen. तो एक तो ये है कि अगर आइटम हमारे पास, आइटम ये बेसिकली इन्वेंट्री टाइप बन जाएगा, एक इन्वेंट्री टाइप का रिलेशनशिप बन जाएगा हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास होगा दैट इज अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम इज देयर और नॉट। और सीधी सी बात है, फॉरेन की और फॉरेन की का कंसेप्ट आ गया, प्राइमरी की का कंसेप्ट आ गया हमारे पास। सो डेफिनेटली दिस इंफॉर्मेशन विल नॉट बी देयर इन ए सिंगल टेबल, सो दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी वी हैव टू कीप इन ए सेपरेट टेबल। तो दूसरे टेबल के बारे में कोई बता सकता है? वट एवर यू नो, जो खुद बताएगा, आंसर करना चाहता है इस क्वेश्चन को। बेसिकली दूसरे बी पार्ट के अंदर नाउ वी आर फोकसिंग ऑन हाउ टू जनरेट द बिल। बिल कैसे जनरेट करना है? आइटम हमारे पास है, उसका प्राइस हमारे पास अवेलेबल है, क्वांटिटी वी वांट टू पुट अप ए क्वांटिटी इन दी अदर टेबल। या हमारे पास ये भी चॉइस है कि हम प्रीवियस टेबल के अंदर ही हम क्वांटिटी को भी रख सकते हैं। यस वंशिका। Sir, I'm not sure, but I think ऑर्डर नंबर जो भी प्लेस होगा, उसको हम दूसरे के साथ रिलेट कर सकते। आइटम नंबर जो है वो फॉरेन की बन सकती है, क्योंकि दोनों साइड यूनिक होगी। क्वांटिटी और बिल जो उन्होंने परचेज किया होगा उसके एट्रीब्यूट बनेंगे। तो दूसरे टेबल में आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? व्हाट विल बी देयर इन द सेकंड टेबल? ऑर्डर नंबर, आइटम दैट दे आर परचेजिंग, बिल, क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ बिल। तो बिल का क्या मतलब है? बिल का तो कोई क्या काम है जो आप बिल एट्रीब्यूट रख रहे हैं? सर, द सेम बिल कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। तो वो ऑर्डर आईडी बताएगा ना, ऑर्डर आईडी विल बी यूनिक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट बताओ। आइटम हो गया, और आपने क्वांटिटी तो रखा ही नहीं। क्वांटिटी बोला मैंने। अच्छा, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ दैट। प्राइस तो ऑलरेडी आ गया हमारे पास दूसरे टेबल के अंदर। व्हाई वी वांट टू हैव। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि दोनों टेबल को, जैसे हमने पहले टेबल बनाया आइटम, दूसरा हमने ऑर्डर टेबल बना दिया, दोनों टेबल को हम रिलेट कैसे करेंगे आपस में? मेरे हिसाब से हम ये जो आपने रखा है आइटम के बेस पे हम दोनों टेबल्स को रिलेट कर सकते हैं। वी कैन रिलेट दी बोथ द टेबल्स, ठीक है। क्योंकि आइटम आईडी रख लेते हैं हम। आइटम आईडी कैन बी देयर इन दी सेकंड टेबल आल्सो एंड इन दी फर्स्ट टेबल आल्सो। तो फर्स्ट टेबल में वो काम करेगा प्राइमरी की में, और सेकंड में फॉरेन की बन जाएगी हमारे पास आइटम आईडी, ठीक है। तो सेकंड टेबल के अंदर हमारे पास जो आपने बताया, एक
एक हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर आईडी, दूसरा आ जाएगा ऑर्डर आईडी विल बी दी प्राइमरी की, सेकंड इज दी आइटम आईडी, और थर्ड है क्वांटिटी कि कितनी बाई की है, कितनी क्वांटिटी बाई की है, ठीक है। तो आइटम आईडी सेकंड टेबल में फॉरेन की का काम करेगी, फर्स्ट टेबल में आइटम आईडी काम करेगी एज ए प्राइमरी की, ठीक है जी। और प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, जो भी ऑर्डर हम जनरेट कर रहे हैं दैट ऑर्डर वी विल जनरेट ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर होना चाहिए, रेस्ट एग्जैक्ट आंसर नो, जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट करेंगे एग्जैक्ट आंसर वी कैन नॉट थिंक ऑफ। The last part is C part. I will just read this one. School wants to find how many calories students intake. They order an item. In which relation should the attribute calories be stored? चलो अभी एक और आइटम आगे से कैलोरीज को भी ध्यान में रखना है हमने। C part is school wants to find out how many calories students intake when they order an item. तो एक ऑर्डर की हमने बेसिकली कैलकुलेट करनी है, ये कैलोरीज एट्रीब्यूट शुड बी देयर, और कैलोरीज मेरे हिसाब से आएगा, कैलोरीज आएगा मेरे हिसाब से फर्स्ट टेबल में, क्योंकि फर्स्ट टेबल में हर एक आइटम पड़ी हुई है उसमें, ठीक है। तो अगर मैं 4 आइटम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो कैलोरीज भी मेरी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में मैं रख दूंगा, जैसे मेरी आइटम है समोसा डाला हुआ है मैंने, तो समोसा कितने कैलोरीज का है, ठीक है। या बर्गर रखा हुआ है आपने आइटम, या जो भी आइटम है, चिप्स है, तो चिप्स कितने कैलोरीज है उसकी। तो फर्स्ट टेबल में ही आइटम पड़ी हुई है, साथ साथ में हम एक कैलोरी वाला एट्रीब्यूट डाल देंगे सो दैट वी कैन कैलकुलेट अगर हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जितनी स्टूडेंट्स आइटम्स को ऑर्डर कर रहा है, मल्टीपल आइटम्स को ऑर्डर कर रहा है, तो उतने को हम कैलोरी से मल्टीप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलोरीज कंज्यूम्ड बाय ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जो भी ऑर्डर कर रहा है। यस श्रिया। सर जो सेकंड पार्ट था, बी पार्ट था, उसमें हमने जो न्यू टेबल में हमने क्वांटिटी रखा है वो हम इंसर्ट करके पहले टेबल में भी रख सकते थे। एक्चुअली क्या है कि अगर तो हमारे पास एक ही टेबल में सारा कुछ आ जाएगा, सो दैट विल बेसिकली आल्सो वो फॉरेन की वाले कंसेप्ट को आप एक टेबल के ऊपर दैट बिकम्स मोर चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। सर तो उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए ना कि एक या तो हम न्यू रिलेशन में बना दें या फिर प्रीवियस रिलेशन में हम अपडेट कर दें। हाँ, तो प्रीवियस रिलेशन में इट बिकम्स डिफिकल्ट अगर हमें एक टेबल के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन रख लेते हैं अबाउट द आइटम्स, दूसरे के अंदर हम रख लेते हैं, क्योंकि हमने ऑर्डर आईडी भी जनरेट करना है, वी हैव टू जनरेट ऑर्डर आईडी आल्सो। तो वंशिका ने अच्छा फार्मूला दिया कि दूसरे टेबल के अंदर हम ऑर्डर आईडी ले जाएं, एंड दैट विल आल्सो बी यूनिक, क्योंकि हमें ऑर्डर अल्टीमेटली हमें लास्ट पे हर एक स्टूडेंट का जो बिल जनरेट होगा वो भी कैलकुलेट करके रखना है कि दैट शुड बी यूनिक। आपके अकॉर्डिंगली सही है कि हम क्वांटिटी फर्स्ट में ले जाएं, बट क्वांटिटी हमेशा जो होती है वो ऑर्डर के साथ रिलेट करती है, क्वांटिटी कभी आइटम के साथ रिलेट नहीं करती, ठीक है। आपको हमें ये कभी भी पहले नहीं पता होगा कि जो कस्टमर आ रहा है वो 4 समोसे ऑर्डर करेगा या 5 समोसे ऑर्डर करेगा। सो क्वांटिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ऑर्डर, कि जैसे नवदीप ने ऑर्डर देने आया तो नवदीप को ऑर्डर नंबर लेट से बन गया 101, तो मैं क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं 5, तो ये डिपेंड कर रही है मेरे ऑर्डर के ऊपर। ये पहले नहीं आप डिसाइड कर सकते कि मैं जी 4 ही समोसे बेचूंगा, मैं एक समोसा नहीं बेच सकता सिंगल। तो क्वांटिटी विल ऑलवेज आई थिंक विल बी द पार्ट ऑफ दैट ऑर्डर आईडी। बाकी इन चीजों को हम जितना ग्रेजुअली काम करेंगे ना, दैट्स ए गुड आइडिया। जितना हम ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली आंसर करने वाले नहीं है, दैट इज व्हेन वी वर्क ऑन प्रैक्टिकली एंड सॉल्व दी सर्टेन सॉर्ट ऑफ ए क्वेश्चन। अभी तो क्या किया हुआ है, +2 में से भी ये फॉरेन की का कंसेप्ट खत्म किया हुआ है, एंड वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम फॉरेन की इन +1 आल्सो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दे आर नॉट, आप एक्सपेक्ट ना करो, दे आर नॉट वेरी इजी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो इनका जब हम टेबल बनाएंगे, अल्टीमेटली इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, so then we will be in a position to answer these questions in a better, ठीक है। तो ये अप्लाइड क्वेश्चन है, 100% इसका आंसर we cannot give in the sort of a description only, we have to practically implement this one, clear। तो नेक्स्ट हम डेटाबेस कंसेप्ट को ही इंप्लीमेंट आगे फॉलो करेंगे। एंड माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एक बार आप ये जो एनसीईआरटी वाली बुक है
क्लियर, उसको भी आप एक बार रीड कर लो। द कंटेंट्स आर नो हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। सो द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट्स इज आल्सो वेरी गुड, और क्वेश्चन की क्वालिटी भी अच्छी दी हुई है इसके अंदर। सो यू कैन लुक एट द एक्सरसाइज। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आती है किसी क्वेश्चन में, so you can bring those doubts in the class also. So I hope that in the upcoming classes, ठीक है, थोड़ा एक बार पढ़ के आओगे तो आपको भी ज्यादा फायदा है, and just answering the question straightforward. कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपका, any sort of query you have, you can ask now. ठीक है, तो जितना हम थोड़ा +1 को अच्छी तरह से बिल्डअप कर लेंगे, सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू एनॉर्मसली इन दी नेक्स्ट ईयर। +2 में आपको काफी हेल्प करेगा ये सारा, जितनी हम मेहनत कर लेते हैं अभी। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास। Thank you, sir. थैंक यू।